সুস্বাগতম সুস্বাগতম ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী জি সুস্বাগতম 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 ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী জি সুস্বাগতম 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 ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী জি সুস্বাগতম 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 মোদি জি স্বাগতম 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 মোদি জি স্বাগতম 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 মোদি জি স্বাগতম 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 ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী জি সুস্বাগতম স্বাগতম স্বাগতম পুরুলিয়ার পবিত্র ভূমিতে মোদিজি স্বাগতম 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 পুরুলিয়ার পবিত্র ভূমিতে মোদিজি স্বাগতম 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 পুরুলিয়ার লাল মাটিতে মোদিজি স্বাগতম 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 পুরুলিয়ার লাল মাটিতে মোদিজি স্বাগতম 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 পুরুলিয়ার পবিত্র ভূমিতে মোদিজি স্বাগতম 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 মোদিজি স্বাগতম 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 মোদি ভারতের যশস্বী মাতা কি জয় বলে ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের দেশের বিশ্ব নেতা ভারত মাতার বীর সন্তান যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা সবাই মিলে উনাকে সুস্বাগত জানাবো এবং আমাদের লোকসভার ক্যান্ডিডেট এবং প্রদেশের সাধারণ সম্পাদক পুরুলিয়া জেলার লোকপ্রিয় সাংসদ এবং এই লোকসভার ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী মোদীজিকে স্বাগত জানাবেন। উত্তরীয় দিয়ে মোদীজিকে স্বাগত জানাবেন আমি জানার জন্য অনুরোধ করছি। ভারত মাতা কি এবং পুরুলিয়ার ঐতিহ্য মুখোশ দিয়ে স্বাগত জানাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। আমরা সবাই করতালি দিয়ে স্বাগত জানাবো। ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। সবাই বলবো মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। এরপর আমাদের বরণ করে নেবেন আমাদের পুরুলিয়া জেলার লড়াকু জেলা সভাপতি সম্মানীয় বিবেক রাঙ্গা মহাশয় বরণ করে নিচ্ছেন। এবং পুরুলিয়া ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহারাজ স্বামী নিত্যাস সুধানন্দ জি বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে। ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি জয় শ্রীরাম জয় জয় শ্রীরাম। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ জ্যোতির্ময় দাস জিন্দাবাদ বিজেপি বিজেপি জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি। এরপর আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি আমাদের পুরুলিয়া জেলার জেলা বিজেপির লড়াকু জেলা সভাপতি সম্মানীয় বিবেক রাঙ্গা মহাশয়কে। আমাদের পুরুলিয়া জেলার লোকপ্রিয় সাংসদ তথা পুরুলিয়া লোকসভার ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট সম্মানীয় জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো মহাশয়কে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ ময়না মুর্মু দিদিকে। ভারত মাতা কে। আজকে বিশ্বের সব থেকে লোকপ্রিয় নেতা আমাদের এই পুণ্যভূমিতে ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র ভাই মোদীকে আমরা করতালি দিয়ে স্বাগত জানাবো সবাই।
আজকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জেলা সভাপতি বিবেক দা, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ দা, ভারত সেবাশ্রম সংঘের জয়েন্ট সেক্রেটারি মহারাজ নিত্য শুদ্ধানন্দ জি মহারাজ, যাকে সুশান্ত মহারাজ নামে আমরা চিনি, জয়পুরের সম্মানীয় বিধায়ক নরহরি মাহাতো মহাশয়, পুরুলিয়ার সম্মানীয় বিধায়ক সুদীপ মুখার্জি মহাশয়, পাড়ার সম্মানীয় বিধায়ক নদিয়াচাঁদ বাউরি মহাশয়, বলরামপুরের সম্মানীয় বিধায়ক বানেশ্বর মাহাতো মহাশয়, কাশীপুরের সম্মানীয় বিধায়ক কমলকান্ত হাঁসদা মহাশয়, উপস্থিত আছেন বিদ্যাসাগর দা, ভিপিদা সমেত মঞ্চাসীন, এবং আমার সামনে আজকে যে জনসমুদ্র তৈরি হয়ে আছে সেই মায়েরা, বোনেরা এবং দাদারা, পুরুলিয়ার যে দেবতুল্য মানুষকে আমি শত কোটি প্রণাম জানাই। আজকে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে শোনার জন্য এসেছি, সেই জন্য আমার বক্তব্য আমি দীর্ঘায়ু করব না। তাকে আমি সসম্মানে ষষ্ঠাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে পুরুলিয়ার এই পুণ্যভূমিতে আমি স্বাগত জানাই। আমি ছোট্ট সংক্ষেপে একটু বলতে চাই, কয়েকদিন আগে আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের স্বঘোষিত যুবরাজ এসে নিজের পিঠ নিজেই বাজিয়ে চলে গেলেন, বললেন নাকি তারা জঙ্গলমহল তথা পুরুলিয়ার বিশাল ডেভেলপমেন্ট করেছেন। আমি এই মঞ্চের থেকে মনে করে দিতে চাই, সেই সময় 2018-19 সালে তিনি পুরুলিয়া জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার ছিলেন, আর এই সময় যিনি প্রার্থী আছেন তিনি জেলা সভাপতি ছিলেন। এদের নেতৃত্বে 6টি মার্ডার হয়েছিল বন্ধু। এই জঙ্গলমহলে মার্ডারের ডেভেলপমেন্ট করেছিল, আর কয়েকশো পুরুলিয়ার কার্যকর্তাকে হসপিটালাইজ করেছিল। আপনারা ভুলে যাবেন না, এই ভোটের সময়ও কাশীপুরে আমরা ঝুলন্ত দেহ দেখেছি, এবং দিনা কয়েক আগে পাড়াতেও দুটো হাফ মার্ডার দেখেছি বিজেপির কার্যকর্তাদেরকে। উনি বলছেন ডেভেলপমেন্টের কথা, আমি বলতে চাই পুরুলিয়ার থেকে ঝাড়গ্রাম অব্দি যে ডবল লাইনের ফাইনাল যে আপনার সার্ভে কে দিয়েছেন, এই যিনি বসে আছেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী। কেন? দিদিমণিও তো রেলমন্ত্রী ছিলেন, লম্বা সময় ধরে কেন্দ্র সরকারে ছিলেন, কেন তিনি সেটার জন্য কর্ণপাত করেননি বন্ধু? আজকে পুরুলিয়াতে 7টি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের রেলওয়ে স্টেশন, যাতে আমাদের যারা মনীষীরা আছে তাদের প্রতিচ্ছবি লাগানো হবে। গৌশালা মোড়ের যে আমাদের ফ্লাইওভার, এক পাশে মেডিকেল কলেজ, এক পাশে আপনার সদর হাসপাতাল, 20 মিনিট থেকে 30 মিনিট অবধি আমাদেরকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়। সেই রেল লাইনে কে করেছেন? সেই রেল লাইন করেছেন ভারত সরকারের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী। আজকে আপনারা দেখে আসুন, কোটশিলার থেকে পুরুলিয়া অবধি ডবল লাইন, আপনার ভারতমালা এক্সপ্রেস, সব থেকে বেশি আমরা পুরুলিয়াতে পেয়েছি 81 কিলোমিটার, 2800 কোটি টাকা ব্যয়ে আমাদের এখানে পুরুলিয়ার উপর দিয়ে বেনারস থেকে কলকাতা সার্ভে তৈরি সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, কাজ শুরু হবে বন্ধু। বিকাশ পুরুষ কাকে বলে? আজকে তৃণমূলের বন্ধুদেরকে আমি বলবো, এই সবার মাঝে দেখে আসুন কি হচ্ছেন বিকাশ পুরুষ। ডিভিসিতে যে আছে সাঁওতালডিতে আমাদের, সেই ডিভিসি আছে 11,500 কোটি টাকা এক্সটেনশন নতুন ভাবে দেওয়া হয়েছে। আজকে আমাদের ঝাড়খণ্ডের বর্ডার, বোকারোর বর্ডার থেকে চান্ডিল বর্ডার অব্দি 727 কোটি টাকার যে আপনার 4 লেন রাস্তা কে দিয়েছেন বন্ধু? মাননীয় মোদীজি দিয়েছেন। আমি সেই জন্যে আমার বক্তব্য দীর্ঘায়ু করতে চাই না। উনি আজকে আশীর্বাদ করতে এসছেন এবং জনগণের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য এসছেন। এইবারে আমাদের ভারত সরকারে উনি 400 আসন নিয়ে দিল্লিতে তাকে আমরা প্রধান সেবক হিসাবে আমরা বসাবো, এই প্রতিজ্ঞা আমরাও করছি। সকলকে আমি করজোড়ে আরেকবার আমি আমার আশীর্বাদ চেয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে, পশ্চিমবাংলায় যেরকম আমরা কথা দিয়েছি 35টা আসন দেব, পুরুলিয়া তো 3 লক্ষ ভোটে আশীর্বাদ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে প্রধান সেবক পুরুলিয়ার আমি, আমাকে আশীর্বাদ করুন, এই প্রার্থনা করে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য সমাপ্ত করছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। ভারত মাতাকে জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ পুরুলিয়া জেলার লোকপ্রিয় সাংসদ
তথা এই লোকসভার ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী সম্মানীয় জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো মহাশয়কে উনার মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্য। এরপর যার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা এতক্ষণ অধীর আগ্রহে বসে আছি, পুরুলিয়া জেলাবাসী, আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, আমি ওনাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। नमस्कार। पुरुलिया ने, जंगल महल ने मोदी को, भाजपा को असीम स्नेह दिया है। मोदी आज यहां आपसे सिर्फ वोट मांगने नहीं आया, बल्कि मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आमी आपनार आशीर्वाद नीते ऐसे छी। मुझे विकसित भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। मुझे आत्मनिर्भर भारत के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। साथियों, 4 जून अब बहुत दूर नहीं है और अभी मैं हेलीकॉप्टर में उतरकर, इतने लोग थे कि मैं उनके दर्शन करने के लिए चला गया। ये दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके 1% इधर हुआ तो क्या होगा, 1% उधर हुआ तो क्या हुआ होगा, अपना दिमाग खपाते हैं। बेकार में टाइम खराब मत करो, ये दृश्य देख लो 4 जून को क्या होने वाला है। इंडी गठबंधन वालों के तर्कस में जितने तीर थे ये लोग चला चुके हैं, लेकिन जनता जनार्दन के सुरक्षा कवच के आगे इनका हर तीर, इनकी हर साजिश नाकाम साबित हुई है। मोदी ने इन चुनावों में इंडी गठबंधन वालों का कच्चा चिट्ठा खोल करके देश के सामने रख दिया है। ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं। ये लोग घुसपैठियों को बढ़ावा देते हैं। ये लोग वोट बैंक को खुश करने के लिए सीएए का विरोध करते हैं। साथियों, टीएमसी और उसके साथी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिल रहा आरक्षण छीन लेना चाहते हैं। बाबा साहब आंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन आज इंडी गठबंधन वाले धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। कर्नाटका में इन लोगों ने ओबीसी कोटे का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। टीएमसी
इस साजिश में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस के साथ खड़ी है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग जवाब देंगे? जवाब देंगे? क्या आप अपना आरक्षण समाप्त होने देंगे? आपका आरक्षण लूटने देंगे? आपको मिला आरक्षण किसी और को देने देंगे? आप लोग टीएमसी और कांग्रेस का वोट बैंक नहीं है, इसलिए इन पार्टियों को आपकी रत्ती भर परवाह नहीं है। साथियों, टीएमसी ये कहकर राजनीति में आई थी कि मां माटी मानुष की रक्षा करेगी। आज टीएमसी मां माटी मानुष का ही भक्षण कर रही है। बंगाल की महिलाओं का भरोसा टीएमसी से टूट गया है। संदेश खाली में जो पाप हुआ है उसने पूरे बंगाल की बहनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एससी एसटी परिवार की बहनों को तो टीएमसी के लोग इंसान ही नहीं समझते। अपने शाहजहां को बचाने के लिए टीएमसी के लोग संदेश खाली की बहनों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, उनके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। जैसी भाषा ये लोग उनके लिए बोल रहे हैं, इसका जवाब बंगाल की हर बेटी अपने वोट से टीएमसी को तबाह कर देगी। साथियों, भाई आप अपना चित्र लाए, नीचे रखो। लोग पीछे परेशान हो रहे हैं, नीचे रखो इसको। मैंने देख लिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। औरों को परेशान मत करो, नीचे रखो। पीछे परेशान हो रहे लोग। साथियों, तोलाबाजी करना, चोरी करना टीएमसी का ये विचारधारा बन चुकी है। आचार विचार एक ही बन चुका है। आप मुझे बताइए साथियों, जिस बंगाल में मां सरस्वती की पूजा होती है, वहां टीएमसी सरकार शिक्षा में भी चोरी करती है। शिक्षकों की भर्ती में हजारों नौजवानों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और इन सभी नौजवानों को कर्ज में डुबो दिया, क्योंकि नौकरी के लिए उन्हें कर्ज कह करके ये टीएमसी वालों को पैसा देना पड़ा। लेकिन साथियों, नुकसान सिर्फ इन नौजवानों का ही नहीं, आज बंगाल के गांवों के स्कूलों में शिक्षक नहीं है। टीएमसी ने उन बच्चों का भविष्य भी चोरी कर लिया है। भाई और बहनों, टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप देखिए, कांग्रेस के मंत्री कांग्रेस के संसद के पास से कैसे
नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। आपने देखा है कि नहीं? टीवी पर नोटों के पहाड़ देखे हैं ना? मैंने अपनी जिंदगी में आंख के सामने नोटों का ढेर नहीं देखा जितने नोटों के पहाड़ पर ये चोर लुटेरे बैठे हैं। यहां टीएमसी के नेताओं और मंत्रियों के पास से भी नोटों के पहाड़ निकलते हैं। ये भ्रष्टाचार करते रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं और गाली मोदी को देते हैं। मुझे बताइए भाई, क्या मैंने देशवासियों से कभी कुछ छिपाया है क्या? मैंने 14 में कहा था ना, मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करूंगा। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने 2019 में कहा था ना कि मैं भ्रष्टाचारियों को एक एक करके पकड़ूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और 24 में कह रहा हूं, मैं ये भ्रष्टाचारियों का जीना जेल के बाहर रहने नहीं दूंगा। आप बताइए साथियों, आपको लूटने वालों के साथ मोदी ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूरी ताकत से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये लोग गालियां दे तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये झूठे आरोप लगाए तो भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपके लूटने वालों पर चोट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मोदी आज आपको एक और गारंटी दे रहा है। 4 जून के बाद नई सरकार बनते ही ऐसे हर भ्रष्टाचारी, उनकी जिंदगी जेलों में ही बीतेगी। 4 जून पड़े भ्रष्टाचारीদের ওপরে অ্যাকশন আরো তীব্র হবে। और ये जो लूटा हुआ पैसा मोदी पकड़ रहा है ना, ये पैसा उन पीड़ितों का जिनसे उन्होंने लूटा है। मेरी कोशिश है कि वो पैसे उनको वापस मिले, और इसके लिए मोदी रास्ता खोज रहा है। भाइयों बहनों, बंगाल की जनता ने इस बार टीएमसी को साफ करने का पक्का मन बना लिया है। इसके रुझान आने शुरू भी हो गए हैं और इसी के साथ टीएमसी की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। जिन्हें पहले कभी किसी ने पूछा नहीं, मोदी आज उनको पूजा करता है, पूजा करता है। वो सदियों से वंचित रहे हैं, मोदी उन्हें वरीयता देता है। आज गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, मोदी ने सभी को अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पक्का घर सभी को मिला है, कोई भेदभाव नहीं किया। टॉयलेट और गैस कनेक्शन सभी को मिला, मोदी ने कोई भेदभाव नहीं किया। आप मुझे बताइए, मोदी जो मुफ्त चावल देता है, क्या कभी कोई भेदभाव किया है क्या? मोदी ने आपका बैंक में जो खाता खुलवाया, क्या उसमें कभी भेदभाव किया है क्या? साथियों, मैं जानता हूं कि पुरुलिया के आप लोगों को किस तरह जल संकट का सामना करना पड़ता है। ये जल संकट हमारे गरीब,
दलित, पिछड़े, आदिवासी भाई बहनों का जीवन और मुश्किल बना देता है। मोदी की कोशिश देश के हर घर तक नल से जल पहुंचाने की है। माताओं बहनों, मुझे हर घर में नल से जल पहुंचाना है। पिछले 5 साल में 12 करोड़ से ज्यादा घरों को 12 करोड़ से ज्यादा घरों को हमने नल कनेक्शन से जोड़ा है। लेकिन पुरलिया जैसे इलाकों में टीएमसी सरकार इस अभियान को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, वहां डेली हर रोज अलग अलग गांवों में, अलग अलग इलाके में 30,000 घर, एक दिन में 30,000 घरों को नल का कनेक्शन दिया जाता है। इतना बड़ा काम हो रहा है। उसके सामने बंगाल में एक दिन में सिर्फ 5,000 घरों में काम होता है, क्योंकि टीएमसी वाले करने देना नहीं चाहते, उनके तोलाबाज करने नहीं देना चाहते। टीएमसी सरकार से यहां विकास की कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। साथियों, मैं आज गंभीर बात कहना चाहता हूं और बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जब विदेश की धरती पर गए थे, जब वो भारत की बात करते थे, तो लाखों लोग उनके भक्त बन गए थे। हर एक पर एक वर्ग ऐसा भी था जिसको भारत से नफरत थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का खूब अपमान किया, अरे धमकाने की कोशिश की। पर स्वामी विवेकानंद मां भारती का मिशन लेकर निकले थे, वो कहां डरने वाले थे। आज ऐसा ही बंगाल की धरती पर हो रहा है। चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है।
इसे बंगाल की जनता का जरा भी ख्याल नहीं, लाखों लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं। मैं भक्ति वेदांत, स्वामी प्रभुपाद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी प्रणवानंद जैसे आध्यात्मिक गुरुओं का अपमान ये देश कभी नहीं सहेगा। ऐसी सरकार जो बंगाल की सेवा संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं रखती है, उसे आपने अपने वोट की ताकत से ऐसी सजा देनी है, ऐसी सजा देनी है कि कभी वो हमारे संतों, महंतों, महापुरुषों का अपमान न कर सके। भाई और बहनों, भाजपा सरकार विकास भी, विरासत भी इस मंत्र पर काम करती है। पुरुलिया और इस क्षेत्र का छाऊ नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। ये भाजपा ही है जिसने छाऊ मास्क को जीआई टैग दिया है, इसे पुरुलिया की पहचान के साथ जोड़ा है। भाजपा देश की संस्कृति की समृद्धि को दुनिया भर में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, यहां अयोध्या पहाड़ है, देखिए विशेषता, यहां अयोध्या पहाड़ है और यहां सीता कुंड भी है। प्रभु राम के चरण यहां पड़े हैं। यहां 500 साल बाद जब हमारे देश में प्रभु राम का भव्य मंदिर, उसमें हमारे राम लला विराजे हैं। आपको आनंद हुआ कि नहीं हुआ? आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? बोलिए जय श्री राम। लेकिन टीएमसी को राम का नाम लेना, रामनवमी मनाना ही पसंद नहीं है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये हमारी आस्था तक की परवाह नहीं करते। ऐसी टीएमसी आपका एक वोट भी पाने के लायक नहीं है। भाइयों और बहनों, मोदी पुरुलिया के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यहां हाईवे और रेलवे का काम गति पकड़ रहा है। पुरुलिया रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो, वंदे भारत ट्रेन हो, इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी हमारी प्राथमिकता है। हाल में ही मुझे रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। 11,000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से अनेकों रोजगार बनेंगे। साथियों, देश विकसित तब होगा जब बंगाल भी विकसित होगा। जखन बांग्लार विकास होबे तबेई देशेर विकास होबे। इसलिए 25 मई को आपको हमारे साथी ज्योतिमय सिंह महतो जी को हर बूथ पर विजयी बनाना है। कमल पर पड़ा आपका हर वोट सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आप मेरा एक काम करेंगे, हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करेंगे। घर घर जाइएगा और कहिएगा कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर घर में मेरा राम राम पहुंचा देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे।